नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डिजिटल क्लास के अंदर आप सबનું हार्दिक स्वागत છે। विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 7 પાઠ નંબર 3 સચ્ચા હીરા પાઠની ચર્ચા કરવાની છે। તો સચ્ચા હીરા પાઠની અંદર શેનું મહત્વ દર્શાવવામાં આવ્યું છે, તો સૌથી પહેલા આપણે એની ચર્ચા કરી લઈએ, ત્યારબાદ આપણે આ પાઠની વિસ્તૃત માહિતી મેળવીશું। तो विद्यार्थी मित्रों, सच्चा हीरा आ कहानी अंदर सरस मजा एक व्यक्ति अंदर रहेला ज्ञान ની વાત કરવામાં આવી છે। જ્ઞાનની સાથે સાથે વ્યક્તિ કેવા કર્મો કરે છે એનું એક મહત્વનું ઉદાહરણ આ પાઠની અંદર પૂરું પાડવામાં આવ્યું છે। તો सारू एवं ज्ञान हो, कोई सारी एवी बात हो, परंतु आपणे आचरण में लावता नहीं, जे नहीं लावता एक निर्थक कहेवामां आवे छे। आ पाठनी अंदर एक रहेला एवी बात छे कि कोई पण व्यक्तिनी अंदर घणी बधी प्रकारनुं सारू एवुं ज्ञान रहेલું હોય છે, પણ એ વ્યક્તિ અમલમાં બીજાને કહેતો હોતો નથી। એની વાત આ પાઠમાં કરવામાં આવી છે। તો એક આ ચાર સ્ત્રીઓની એક આ વાત છે મિત્રો, કે ચાર સ્ત્રીઓ નદી કાંઠે પાણી ભરવા જાય છે અને ત્યાં બેસીને અને એક સ્ત્રી એ પાણી સીંચતી હોય છે, બાકીની ત્રણ સ્ત્રી પોતપોતાના બાળકોના વખાણ કરતી હોય છે કે પહેલી સ્ત્રી કે મારું બાળક આવો છે, બીજી બાર કે મારું બાળક આવો છે, ત્રીજી કે મારું બાળક આવો છે। તો ત્રણેયના એ બાળકોની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે કે અમારા બાળકો આવા છે, પણ જો ચોથી સ્ત્રી છે એ કંઈ જ બોલતી નથી અને સામે એ પાણી ભરીને એ ચારે સ્ત્રીઓ ચાલતી જાય છે અને ચારે સ્ત્રીઓ એ પાણી ભરીને ઘર તરફ જાય છે ત્યારે એક રસ્તામાં જ એ ત્રણ સ્ત્રીઓ પોતાના બાળકોના વખાણ કર્યા હતા। એક બાળકો તેમને સામે મળે છે, પહેલા પહેલી સ્ત્રીનું બાળક સામે મળે છે, એ પ્રમાણે બાળક હોય છે એટલે એ સ્ત્રી એની માને બોલાવતું નથી અને એમના બે ચાલી જાય છે। બીજી સ્ત્રીનું પછી બાળક આવે છે, બીજી સ્ત્રીનું બાળક પણ એમના પ્રમાણે વર્તન કરતો આવે છે અને એની માને બોલાવતો નથી અને ચાલી જાય છે। એમ ત્રીજી સ્ત્રીનું બાળક આવે છે અને આપી જાય છે અને એની માતાને ખૂબ પ્રશંસા થાય છે કે મારું બાળક આવી રહ્યું છે, પણ એક ત્રીજી સ્ત્રીનું બાળક પણ એની માને બોલાવતું નથી અને તરત ત્યાંથી ચાલી જાય છે। એમ છેલ્લે ચોથી સ્ત્રીનું બાળક એ સ્ત્રીએ પોતાના બાળકના વખાણ કર્યા ન હતા અને એ સ્ત્રીનું બાળક એ સામે આવે છે અને સામે આવે અને એની માતા તરફ એ આવતું જણાય છે કે માતા પાસે આવે છે અને માતા પાસે આવીને અને કહે છે કે લાવ માતા, લાવમાં હું એક પાણી ઘડો હું ઉપાડી લઉં છું, તેને વજન લાગતું હશે કે એમ કે બાળક એની માને મદદ કરવા માટે એ પાણીનો ઘડો એ લઈ અને ઘર તરફ ચાલી જાય છે। તો મિત્રો, આપણા પોતપોતાના એ બાળકોની અંદર રહેલા વર્તનની વાત કે સાચો હીરો કોને કહેવાય? સાચો હીરો તો એને કહેવામાં આવે છે જે એની માને મદદ કરતો હોય એને સાચો હીરો કહેવામાં આવે છે। એટલે આ જે ચોથી સ્ત્રીનો જે બાળક છે એ પાણીનો ઘડો લઈને અને ઘરે લઈ જાય છે એને સાચો હીરો કહેવામાં આવે છે। તો મિત્રો, જોઈએ આપણે આ પાઠની અંદર આ પાઠ કહાનીની અંદર કે સૌથી પહેલા આ પાઠની વિસ્તૃત સમજૂતી પહેલા મેળવી પહેલા આપણે આ પાઠનો એક વિડીયો જોઈ લઈએ। વિડીયો દ્વારા આપણને ખબર પડશે અને ત્યારબાદ આપણે પાઠની વિસ્તૃત સમજૂતી મેળવીશું। જોઈએ આ સચ્ચા હીરા પાઠનો વિડીયો। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी।
पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगत पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी। भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला कैसे चुप रहती। मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ न कहा। पहली ने उसे टोका। क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान, और न ही बृहस्पति सा बुद्धिमान। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी, तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी मां की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में इसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। वे कुछ आगे बढ़ी तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। उसके उच्चारण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान हो। देखो, यही है मेरी गोद का हीरा। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी मां की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से आ निकला। वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल प्रकृति का लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन, यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी मां को देखकर वह रुक गया और बोला, मां, लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने मां के सिर से पानी भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री के बेटे को देखती रहीं। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी, पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है। तो विद्यार्थी મિત્રો, તમને ખબર પડી કે ચારે બાળકો કેવા છે અને ત્રણેય આ બાળકોની અંદર કેવા કેવા પ્રકારના જે વર્તન છે અને ચોથા બાળકની અંદર કેવા ગુણ છે એના આધારે બાળકનું એક મહત્વનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવતું હોય છે। તો એ ચોથા સ્ત્રીના બાળકની માતાને મદદ કરી એટલે સાચો હીરો સાબિત કરવામાં આવે છે। તો જોઈએ આપણે પાઠની અંદર એની વિસ્તૃત સમજૂતી મેળવીએ। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने अपनी नींद की ओर जा रहे थे। सूर्य अस्त रहे हो पक्षियों चहचहाते चिचिपाटा करता आवाज करता एक पोतपोताना माळा तरफ जई રહ્યા नींद એટલે કે माळ। गांव की कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चली पड़ी। गांव में थोड़ी
ત્રણ ચાર સ્ત્રીઓ એ પાણી ભરવા માટે એ ગામના એક કુવા તરફ એ પાણી ભરવા માટે જાય છે। पानी भरकर कुछ स्त्रियों तो अपने घरों का को लौट गई, परंतु उनमें से चार की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बात करने लगी कि पानी भरती अनेक स्त्रियों पानी भरने घर तरफ આવી રહી હતી। બીજી ચાર સ્ત્રીઓ છે એ ત્યાં પાકી જગહ પર જગ્યા પર બેઠી અને અંદરો અંદરની વાતો કરવા લાગી। बातचीत करते करते बात बिंदु पर जा पहुंचे। बातचीत करता करता पोतपोताना बाળકો पर ये बातों करवा लगे। उनमें से एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी, एक की उम्र थोड़ी बहुत मोटी हटी है। वह कहने लगी तो एक कहती लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। भगवान बधाने मारा दीकरा जो बधाने दीकरो आपे दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, मारो दीकरो लाखों में एक है। उत्कंठा उसका कंठ बहुत मधुर है, कंठ आवाज गलू आवाज बहुत मस्त है। वह बहुत अच्छा गाता है, बहुत सरस गाय है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। चलो गीत सांभी અને આ કોયલ અને મેના પણ शांत થઈ જાય છે। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते, लोगों मनुष्य बढ़िया एक दिन थे આ ગીતો બધા લોકો સાંભળે છે। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। तेरी बात सांभળી અને બીજી સ્ત્રીને એવું થયું કે હવે હું મારા દીકરાની પણ પ્રશંસા કરું, મારા દીકરાનું વખાણ કરું કે। उसने पहली स्त्री से कहा कि पहली स्त्री ने कीधु, मेरे बेटे की बराबर कोई नहीं कर सकता, मारा दीकरानी बराबरी कोई कर सकतु અને મારા દીકરાને કોઈ દીકરો દીકરો નથી કે। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है, તે बहुत शक्तिशाली છે અને બહાદુર પણ છે। वह बड़े बड़े बहादुरों की पछाड़ देता है, તે મોટા મોટા બહાદુર હોય અને પણ પછાડી હિંમત हराई जैसे। वह आधुनिक युग का भीम है, आधुनिक युग नो एक भीम तरीके ओळखવામાં આવે છે। ये सब सुनकर तीसरी और भला कैसे चुप रहा था। आबीनी वातो सांभળી અને ત્રીજી સ્ત્રીને એવું થયું કે કેતે ચૂપ રહી ગઈ। એ ત્રીજી સ્ત્રી પણ પોતાના બાળકના વખાણ કરવા લાગી। એ બોલી, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है, मारा દીકરો तो साक्षात्कार एक बृहस्पति એટલે દેવો કે ગુરુ, તો દેવનો ગુરુ એ ભગવાનનો અવતાર, દેવનો અવતાર છે। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ये जब वांचे से भणे છે એ તરત एकदम फटाफट અને याद મનમાં રહી જાય છે। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास है। એવું લાગે છે કે એના કંઠની અંદર એના શબ્દોમાં કે ભગવાન માતાજી સરસ્વતીનો નિવાસ હોય એવું લાગે છે। જે ભણ તરત જ બધું પાકું થઈ જાય અને બધું મોઢે થઈ જાય છે। એવો મારો દીકરો છે। तीनों वर्गों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी रही। आ ત્રણેય સ્ત્રી વાતો चौथी स्त्री સાંભળતી હતી। चौथी स्त्री कहीं पर बोलिया वगैरह चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ मत कहा, कहने बिना दीकरा विषय कहीं पर बोले नहीं, कहीं पर कहीं नहीं। पहले ने उसे टोकते हुए कहा, पहले से ने कीधु टोके ना कीधु, क्यों बहन तुम क्यों चुप हो, क्यों बेन तू क्या नाम चुप से गए। तुम भी तो अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। तू पर तारे दीकरा नहीं प्रशंसा की वखाण तो कर दे। चौथी स्त्री ने बड़े ही आवाज सहज भाव से कहा। चौथी स्त्री बड़े ही सहज क्या भाव से कही, मैं अपने बेटे की प्रशंसा क्या करूं, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं, मारा दीकरा ने शू प्रशंसा करूंगे। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति का बुद्धिमान। नहीं ये गंधर्व गायक, नहीं ये भीम, नहीं बृहस्पति के देवों अवतार। तुम्हारा दीकरा को प्रशंसा शू करोगे। कुछ समय बाद जब वे सब घड़े सिंह पर रखकर लौटने लगे,
થોડોક સમય બાદ એ ચારે સ્ત્રીઓ माथा पर घड़ा लेने घर तरफ चली गई। तभी किसी गीत का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। तभी एक गीत नो आवाज ત્યાં એને સંભળાયો। सुनकर पहली स्त्री बोली, ये सामने पहली स्त्री बोले छे, सुनो मेरा हीरा गा रहा है, सांभो मारो दीकरो मारो हीरो गाई रह्यो छे। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। तुम लोगों ने सांभळ्યું ने એનો અવાજ કેટલો આમ મધુર છે કે वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। ये दीकरो एक गीत गाते गाते एक रास्ता बदलते ही यहाँ निकल गया। उसने अपनी माँ को की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। कहने की माँ प्रत्ये कोई माँ सामने आती है पर क्या दिख रहा है यानी माँ सामने जोई पर नहीं गीत गाते गाते ત્યાં થી निकल गया। इतने दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। એટલામાં જ બીજી સ્ત્રીનો દીકરો ત્યાંથી આવતા એમને નજરમાં પડ્યો। दूसरी स्त्री ने उसे देखकर गर्व से बोली, બીજી સ્ત્રી એ જોઈને गर्वથી बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ गया है। जो કે મારો લાડકો બેટો દીકરો આવી રહ્યો છે। शक्ति और सामर्थ्य में इतनी इसकी बराबरी कौन कर सकता है। शक्ति सामर्थ्य में बराबरी कौन कर सकता है। वह यह कह रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही निकल गया। एक स्त्री એના દીકરાને વખાણ કરી રહી હતી અને એનો દીકરો પણ એની માં સામે જોયા વિના ત્યાંથી એ પસાર થઈ ગયો। એને એની માને પણ બોલાવીને કોઈ સામે ધ્યાન દીધું નહીં અને દીકરો ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો। वे कुछ आगे बढ़े तो एकाएक तीसरी स्त्री का बेटा इधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। ये भैया धीरे यानी तीसरी स्त्री नो दीकरो ये संस्कृत ना श्लोक नु पठन करतो यानी निकलियो। उसके आचरण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान। इसका उच्चारण आवाज में एवं लागी રહ્યું હતું કે સાક્ષાત એના જે સ્વરમાં અવાજમાં સરસ્વતી બિરાજમાન છે। तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर से कहा। तीजी स्त्री આમ ગદગદ સાથે ભૂલી જાય છે ગદગદ સ્વર એ કહે છે, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। जो આ છે મારા ગોદનો દીકરો। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा और कौन बृहस्पति નો અવતાર ન કહેગે। જો કે ત્યારે કે સાક્ષાત્કાર ભગવાન सरस्वती नाम विराजमान हो एवं लागे છે ને। परंतु उसका बेटा भी मां की ओर देखे बिना आगे बढ़ गया। पर ये દીકરો પણ એની માં સામે જોયા વિના એ આગળ નીકળી ગયો અને ચાલતો રહ્યો કે એની માં સામે ન જોયું। वह अभी थोड़ी ही दूर गया और चार स्त्रीઓ थोड़ी पानी भरीने आगे जा रही है कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक इधर से आ निकला। ત્યારે ચોથી સ્ત્રીનો દીકરો એક ત્યાંથી અચાનક ત્યાં રસ્તામાં એ નીકળે છે। वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति का लग रहा था। તે આમ જોવામાં બહુ આમ સીધો સાધો અને સરળ પ્રકૃતિનો હોય એવું આમ લાગી રહ્યું હતું। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, એના દીકરાને જોઈને આ ચોથી સ્ત્રીએ ઓલી ત્રણેય સ્ત્રીઓને કહ્યું, बहन यही मेरा लाल है। बहन आ मारो દીકરો છે। चौथी स्त्री उसके बारे में पता ही नहीं थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। आ चौथी स्त्री अभी ત્રણ સ્ત્રીઓને એના દીકરા વિશે કહી હતી ત્યારે એનો દીકરો એની માં પાસે કે આ નજીક આવે છે। अपनी मां को देखकर वह रुक गया और बोला। यानी मां ने જોઈને એ દીકરો ત્યાં ઊભો રહે છે અને એની માને કહે છે બોલે છે, मां लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचाऊं। मां लाओ आ तारो आ पानी नो घड़ो तो घरे पहुंचा दो। मना करने पर भी उसने मां के सीन से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सीन पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। मना कर એની માં એને ના પાડે છે, ના બેટા હું ઘરે પહોંચાડી દઈશ, પણ છતાંય દીકરો માનતો નથી અને એની માં ઉપરથી એ પાણીનો ઘડો લઈ લે છે અને માથે ઉપાડી અને એ ઘર તરફ આગળ
ચાલી જાય છે। तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी स्त्री की बेटी का को देखती रही। आता है स्त्रियों बढ़िया आश्चर्य पड़ी જોયું કે આપણો દીકરો કેવો જો આયા ગયા કે આપણે આવું જોયું નહીં અને આ ચોથી સ્ત્રીનો છોકરો તો એ માં સામે આવ્યો અને માં પાસે ઉપર ઘોડો લઈ અને એને ઘર તરફ આગળ ચાલતો જઈ ગયો। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरत को पीछे चलती हुई इनकी बातें सुन रही थी। एक वृद्ध महिला एक बहुत बेड़ा माजी था ए माजी आ बहुत देर थोड़ी देर बाद थोड़ो समय પછી આ औरत પાસેની પાછળ ચાલતી હતી આ બધી વાતો સાંભળતી હતી। પાસ જાकर બોલી કે એની પાસે આવે છે અને પાસે જઈને એ વૃદ્ધ મહિલા બોલે છે देखती क्या हूँ જોઈ શું રહ્યા છો यही तो सच्चा हीरा है। तो જોઈ શું રહ્યા છો કે આ સાચો હીરો છે। જોયું કે એમ આ વૃદ્ધ મહિલા આ સ્ત્રીઓને સમજાવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો જોયું કે આપણે આ ચાર સ્ત્રીઓના કે છોકરાના અંદર કેવા કેવા કર્મ એ પોતે એના વ્યક્તિત્વના કેવા કેવા કર્મો છે અને કેવા કેવા કર્મોને જે નિભાવી રહ્યા છે એની વાત છે। પણ આ ત્રણ સ્ત્રીના દીકરા એની સામે જોતા પણ નથી અને ચોથી સ્ત્રીનો છોકરો આવે અને એની માની મદદ કરવા પડે છે। એટલે આપણા શરીરની અંદર કે આપણામાં જે રહેલા જ્ઞાન આપણામાં જેટલું જ્ઞાન રહી છે જે સારી વાતો રહી છે બધું તમે આચરણમાં નહીં લાવો તો તમે એ સાચા હીરા નહીં બનો। કોઈ ને કોઈ પ્રકારના એ બધું તમે કોઈને મદદ કરતા રહો કોઈને જ્ઞાન વહેંચતા રહો જ્ઞાન વહેંચવાથી જ્ઞાન વધતું જાય છે કે સારી સારી વાત હોય તો સારી વાત તો બીજા દ્વારા તમે પ્રસ્તુત કરો બીજાની વાત કહો તો જ તમારી અહીંયા વિકાસ થતો રહેશે। એમ આ ચોથા હીરા જેવો આપણો સ્વભાવ બનવો જોઈએ અને ઘર પરિવારની અંદર આપણે બધા સાથી મિત્રોની અંદર કે ઘરમાં બેન ભાઈ કે આપણે જે કામ થતું હોય એ કામને આપણે મદદ કરવી પડે અને બહારની વસ્તુ લેવા જવું હોય તો આપણે વસ્તુ લેવા જવું પડે છે। એમ આપણા સાથી મિત્રોની અંદર કોઈને મિત્રને ક્યાંય તકલીફ પડી હોય તો એની જરૂર સહાય મદદ થવું પડે છે તો જ આપણે સાચા હીરા જેવા કહેવાય। भाषा सज्जता। मित्रों, हमने क्रियापद के बारे में जाना है। क्रिया कब हो रही है यह भी जानना आवश्यक है। आइए इन वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। 2. आज स्कूल में छुट्टी है। 3. रमेश बाग में खेलता है। उपर्युक्त वाक्यों में कुछ शब्द रेखांकित है जैसे कि चलते है, छुट्टी है, खेलता है। यह शब्द क्रिया हो रही है ऐसा बोध कराते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या क्रिया हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब इन वाक्यों को पढ़िए। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. मीना कल मुंबई गई। 2. हेमंत ने पत्र लिखा। 3. मां ने दिया जलाया। 4. गीता ने पानी पिया। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द ध्यान से देखिए। गई, लिखा, जलाया, पिया क्रिया पूरी होने का बोध कराते हैं। क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहते हैं। बाल दोस्तों, अब इन वाक्यों को ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। 1. अब्दुल कल आएगा। 2. लड़के शाम को खेलेंगे। 3. मीना गुड़िया खरीदेगी। 4. डाकिया डाक लाएगा। यहां आप समझ सकते हैं कि आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा शब्दों से क्रिया हुई नहीं परंतु होने वाली है ऐसा बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली हो ऐसा बोध होता हो उसे भविष्यकाल कहते हैं।
क्रिया के जिस रूप से क्रिया के समय उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध होता हो उसे काल कहते हैं। काल के प्रमुख 3 भेद हैं। 1. वर्तमान काल, 2. भूतकाल, 3. भविष्य काल। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણે આ પાઠ પૂરો કર્યો છે। તો આ પાઠના જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે એ આપણે મારી નોટબુકની અંદર સારા અક્ષર લખી તૈયાર કરવાના છે। पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। देखते दोस्तों, 1 नंबर, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? उत्तर देखेंगे दोस्तों। चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए ला रही माँ को उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। आगे देखेंगे दोस्तों दूसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, अपने घर में आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो दोस्तों आप भी कमेंट में लिखिए कि आप अपने माता पिता को घर में कौन कौन से काम में मदद करते हैं। देखते उत्तर। मैं माँ के कहने पर बाजार से चीजें खरीद लाता हूँ। इन चीजों में शाक, सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती हैं। घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीजें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। तो दोस्तों आपको अपने कामों यहाँ लिखने हैं। आगे देखेंगे दोस्तों तीसरा प्रश्न, आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? देखते दोस्तों उत्तर। आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है, उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो वह व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। अपने ज्ञान और गुण को कर्म में उतार कर ही उन्हें सफल बनाया जा सकता है। इस प्रकार कर्म करके बड़ों की सेवा और जरूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के बाद में तुरंत आने वाले शब्द का अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर लिखिए। तो हमें दोस्तों शब्दकोश का जो उपयोग करना है और उनमें से जो शब्द हैं उनके बाद में जो शब्द आने वाला है उनका शब्द लिखना है और उनका अर्थ लिखना है। तो देखेंगे दोस्तों, शब्द है बपोती और तुरंत आने वाला शब्द है बप्पा और जिसका अर्थ है पिता। 2 नंबर, व्यथा, तुरंत आने वाला शब्द है व्यथातुर और अर्थ है पीड़ित। 3 नंबर, नियति, तुरंत आने वाला शब्द होगा नियंत्रेंद्रिय और अर्थ है जितेंद्रिय। 4 नंबर, प्रतिभा, तुरंत आने वाला शब्द होगा प्रतिभाग और शब्द का अर्थ है उत्पादन कर। आगे देखेंगे शौर्य और तुरंत आने वाला शब्द होगा शौलक और अर्थ है शुल्क संबंधी। आगे देखेंगे दोस्तों शब्द है रुचि और तुरंत आने वाला शब्द होगा रुचित, अर्थ है मनचाहा। 7 नंबर दोस्तों, बांटना, तुरंत आने वाला शब्द होगा बांटा और अर्थ है हिस्सा। 8 नंबर, क्षमा, तुरंत आने वाला शब्द क्षमालु और अर्थ है क्षमा करने वाला। 9 नंबर, शब्द है उद्यान, तुरंत आने वाला शब्द उद्यान की, बाग बगीचे में लगाने का काम। आगे देखेंगे दोस्तों अमन और तुरंत आने वाला शब्द होगा अमन्यस्क और अर्थ है अनुमना। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, कहानी की चर्चा करके छात्रों से लेखन करवाइए। तो दोस्तों देखते हैं कहानी के मुद्दे और उसके आधार पे चर्चा करेंगे। शिक्षक कहता है राजा बीमार क्यों पड़ा? एक छात्र बोलता है क्योंकि वह किसी प्रकार का श्रम नहीं करता था। शिक्षक कहता है वैद्य राजा को स्वस्थ क्यों नहीं कर सका? दूसरा छात्र बोलता है क्योंकि वह राजा की बीमारी का कारण न जान सका। शिक्षक बोलता है किसान क्यों सुखी था? तीसरा छात्र कहता है किसान मेहनत करता था, अपनी मेहनत की रोटी खाता था, इसलिए वह स्वस्थ और सुखी था। आगे देखेंगे दोस्तों सुख का रहस्य यानी कि बीमारी का इलाज। तो कहानी का ये टाइटल होगा। तो कहानी लिखेंगे हम। रामपुर के राजा कुंवर सिंह जी बड़े भाग्यवान थे। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी, फिर भी एक बार वे बीमार पड़ गए।
कई वैद्यों ने उनका इलाज किया, लेकिन कुंवर सिंह जी को कुछ फायदा नहीं हुआ। राजा की बीमारी बढ़ती गई, सारे नगर में बात फैल गई। तब एक अनुभवी बूढ़े ने राजा के पास आकर कहा, महाराज, आप किसी सुखी मनुष्य का कुर्ता पहनिए, अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे। आगे देखेंगे दोस्तों कहानी में क्या होता है। बूढ़े की बात सुनकर राजा ने सोचा, इतने इलाज किए हैं तो एक और सही। राजा कुंवर सिंह जी सुखी मनुष्य की खोज में निकले। बहुत तलाश के बाद वे एक खेत में जा पहुँचे। जेठ की धूप में एक किसान अपने काम में लगा हुआ था। राजा ने उससे पूछा, क्यों जी, तुम सुखी हो? किसान ने विनय से कहा, ईश्वर की कृपा से मुझे कोई दुख नहीं है। यह सुनकर राजा का अंग अंग पुलकित हो उठा। उस किसान का कुर्ता मांगने के लिए ज्यों ही उन्होंने उसके शरीर की ओर देखा, उन्हें मालूम हुआ कि किसान सिर्फ धोती पहने हुए हैं और उसकी सारी देह पसीने से तर है। आगे देखेंगे दोस्तों। तुरंत राजा समझ गया कि कठिन श्रम करने के कारण ही यह किसान सुखी है। राजा ने आराम चैन छोड़कर परिश्रम करने का संकल्प लिया। थोड़े ही दिनों में राजा की बीमारी दूर हो गई। दोस्तों कहानी की सीख है, श्रम से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और सच्चा सुख मिलता है। तो दोस्तों आगे देखेंगे नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपने शब्दों में यानी कि मौखिक एवं लिखित दोनों में हमें पूर्ण कीजिए। तो हमें दोस्तों एक कहानी को पूर्ण करना है। तो ये कहानी है जो अधूरी है, तो कहानी को पूर्ण करेंगे दोस्तों। पुराने जमाने की बात है, कनकपुर देश के दरबारियों की ख्याति देश विदेश में फैली हुई थी। उनकी बुद्धि की प्रशंसा सुनकर दूसरे देश का दरबारी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए। उसके एक हाथ में असली फूलों की माला और दूसरे हाथ में नकली फूलों की माला थी। उसने दरबारियों से कहा, श्रीमान, क्या आप हाथ लगाए बिना बता सकेंगे कि इनमें से कौन सी माला असली फूलों की है? सभी दरबारी आश्चर्य में पड़ गए। तो दोस्तों ये कहानी को पूर्ण करेंगे। दोनों मालाएं बिल्कुल समान लग रही थी। विदेश के दरबारी के प्रश्न का उत्तर देना मुश्किल था, पर आखिर एक बुद्धिमान दरबारी खड़ा हुआ। दोस्तों कहानी को पूर्ण करते हैं। उसने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इन दोनों मालाओं को सामने के उद्यान के एक पेड़ की डाल पर लटका दिया जाए। देखेंगे दोस्तों आगे। उस दरबारी की बात मानकर वे मालाएं पेड़ की डाल पर लटका दी गई। उसी समय में भन 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 करती हुई मधुमक्खियां आई और एक माला पर बैठ गई। दूसरी माला के पास एक भी मक्खी नहीं गई। यह देखकर दरबारी ने कहा, जिस माला पर मधुमक्खियां बैठी वह असली फूलों की माला है, दूसरी नकली फूलों की माला है। उस दरबारी की बुद्धि की सबने प्रशंसा की। दूसरे देश के दरबारी ने भी कनकपुर के दरबारी का लोहा मान लिया। इससे कनकपुर के दरबार की ख्याति और भी बढ़ गई। आगे देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 5, निम्नलिखित कहानी का सारांश लिखिए। तो दोस्तों ये कहानी है जो आपको पढ़ लेनी है और हम सीधा उत्तर पे जाते हैं, यानी कि सारांश। तो कहानी का सारांश है दोस्तों, एक दिन एक शिकारी एक पेड़ के नीचे सो रहा था। ज्यों ही उसके मुंह पर धूप आने लगी, एक राजहंस ने अपने पंख फैला दिए ताकि शिकारी के मुंह पर धूप न आए। इसे देखकर राजहंस से ईर्ष्या करने वाला कौवा शिकारी के सिर में चोंच मारकर उड़ गया। शिकारी उठा और गुस्से में आकर बाण चला रहा था कि इसके पहले ही राजहंस उड़ गया। राजहंस को मरवाने के लिए कौवे की युक्ति धरी की धरी रह गई। आगे देखेंगे दोस्तों स्वाध्याय के प्रश्न की ओर, जिसकी आप आतुरता से राह देख रहे हैं। देखेंगे दोस्तों स्वाध्याय में पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? देखेंगे दोस्तों उत्तर। पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है, उसका कंठ बहुत मधुर है, वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की प्रशंसा की। दूसरा प्रश्न, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? देखेंगे दोस्तों उत्तर। दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, वह बहुत ही शक्तिशाली है, वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है, वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे के बल का बखान यानी कि तारीफ किया। आगे देखेंगे दोस्तों तीसरा प्रश्न,
तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तो देखेंगे दोस्तों उत्तर। तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। आगे देखेंगे दोस्तों चौथा प्रश्न, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? देखेंगे दोस्तों उत्तर। चौथी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और न बृहस्पति सा बुद्धिमान है। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे साधे लड़के के रूप में अपने बेटे का परिचय दिया। आगे देखेंगे दोस्तों अंतिम प्रश्न, प्रश्न 2, निम्नलिखित युक्ति कौन किसे कहता है? लिखिए। तो दोस्तों देखते हैं 1 नंबर, यही सच्चा हीरा है। तो यह युक्ति कौन किसे कहता है? तो उत्तर है एक वृद्ध महिला चारों स्त्रियों से कहती है। 2 नंबर दोस्तों, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुँचा दूं। तो ये पंक्ति कौन किससे कहता है? उत्तर चौथी स्त्री का बेटा माँ से कहता है। 3 नंबर दोस्तों, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तो दोस्तों उत्तर है पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। 4 नंबर, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। उत्तर है तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। और अंतिम प्रश्न, प्रश्न 5, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। तो दोस्तों उत्तर है दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। अस्तु, जय हिंद, जय भारत।